Hi everyone, welcome to Bhumi Ki Bhavya. Today we have Miss Kalina Pandey. So she has a brand called Seedhe Pahad Se. Now when we imagine talking about Dehradun and then we talk about पहाड़ तो बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं तो उसी वजह से आज कल्पना जी यहाँ पे हैं वेलकम मैम और हम चाहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम समझें क्योंकि मैं जितना मुझे समझ है आपके बारे में हमेशा ग्राउंड रियलिटी पता चलेगी फार्मर्स तो हम बहुत खुशी से वो सुनना चाहेंगे और हमारी ऑडियंस भी बहुत इंटरेस्टेड रहेगी कि आप लोग ढेर सारी बातें करें। मैं शुरुआत करना चाहूँगी कि कहाँ से ये क्रिएशन हुआ सीधे पहाड़ से। सीधे पहाड़ से basically, since I am Uttarakhandi myself, I am from सीधे पहाड़ से. So I used to. तो आजकल today's world everybody can really dream big, whatever they want to do. So in heart of hearts I wanted. मैं चाहती थी कि मेरा अपना business हो और business normal business सब करते हैं जिसमें I can add value and help a lot of people in some way or the other. क्योंकि मेरा एक background है last 30 years I've been doing a lot of social work, interacting with a lot of women, a lot of people who are underprivileged. तो मेरे काफ़ी लोगों से deal करती हूँ. So when my husband was posted in Delhi, he being the government, we traveled all over the country. तो तब मैं going to Uttarakhand became kind of ritual. Every 2-3 months I used to go there, and then I found such interesting people. And कि जो कई में I in fact there was this people who were educated and they have left their work because they realized कि पहाड़ों में they're sincere. Look at the asli pahadi. They want to stay and do something of their own. So I met such farmers. I met a lot of people working cooperatives. I met a lot of women who were, working the whole day. They were working in the house, but still they had time to, showcase the traditional art of Uttarakhand. So that kind of motivated me that I should start something of my own. And when I'm going to help them, definitely I'm going to help myself also. इसलिए मेरे को ये आया सीधे पहाड़ से. ठीक है तो अब ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अब कैसे चल रहा है। सफ़र शुरू हुआ 3 साल पहले और जब हम देहरादून आए दिल्ली से तब ये शुरू हुआ और ये जो सीधे पहाड़ से बेसिकली ये वेलनेस ब्रांड है एंड वी डील इनटू हिमालय वेलनेस ब्रांड. वी डील इनटू हर्ब्स, टीज एंड स्पाइसेस ऑफ उत्तराखंड and the traditional handicrafts of Uttarakhand, like the epanard, the Ranwali pattern. So we deal in that. And हमारा जो basic focus है, as the name says, सीधे पहाड़ से. So basically, हम directly, I work with these cooperatives, and I've been working with these cooperatives for a very long time. So now I take, they supply me products, and I showcase their products. And while showcasing, I make sure जो हमारे original traditional चीज़ें थी वो वैसे वे में रहे. If they organic, if I say my products are organic, it's 100% organic. Look at my teas. It doesn't mean जो चाय को जो हम रोस्ट करते हैं, that also वही की लकड़ी से बना के वो बनाते हैं. So we not using anything else. They're organic, preservative free. And जैसे जो traditional जो herbs होती हैं हमने वैसे ही उनको किया है. But only thing I do is I make them marketable. That is my work. So I market and then I sell. And my basic purpose is everybody should know that Uttarakhand is a state which is full of such amazing herbs, teas, which the nature has given Uttarakhand in abundance. So whatever you want, you can get it. मतलब जो herbs मेरी ऐसी हैं कि तुम उसी nature से you can cure yourself, you can become healthy. So I want a lot of people to मुझे चाहती हूँ कि बहुत सारे सब लोगों को पता चले. जैसे आप देखो बड़े डिफरेंट स्टेट्स की सबकी ब्रांडिंग है. जब हम राजस्थान का सोचते हैं हम उनके आर्ट के बारे में सोचते हैं, टूरिस्ट फ्रेंडली सोचते हैं, हवेली के बारे में. ऐसे जब हम उत्तराखंड के बारे में सोचें तो हमारे वहाँ के टी, हमारे हर्ब्स और स्पाइसेस के बारे में सोचें. दैट इज द बेसिक पर्पस आई वांट. अभी जैसे आपने बताया कि आपके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं तो कैसे वो मार्केट से डिफरेंट है जैसे आपने बताया कि आप ऑर्गेनिकली तो हाउ इज इट डिफरेंट सी जो मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं तो बहुत सारे मिडलमैन के थ्रू आते हैं. फिर उसमें हम लोग टू मेक इट मोर मार्केटेबल और सेलेबल हम उसमें कुछ चीज़ें डालते हैं जो नहीं डालनी चाहिए. जैसे हम चाय को अगर आप इसमें देंगे, स्मैशेस में देंगे, डिप वाली जो चाय होती है उसमें देंगे तो
हम जो वो यूज़ करते हैं प्लास्टिक, दैट्स हार्मफुल फॉर योर इट्स हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो हम ये एक तो पहली बात है हमारा जो यूनिक इसमें है कि हमारे प्रोडक्ट डायरेक्टली कोऑपरेटिव से आते हैं जो डायरेक्टली फार्मर से डील करते हैं, हमारे बीच में कोई मिडलमैन नहीं है। हैंडीक्राफ्ट भी जो हमारा एक इनफॉर्मल सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनसे हम जो बनाते हैं वो डायरेक्टली हम उन लेडीज़ को वही ट्रेडिशनल आर्ट में बनाने को बोलते हैं, उनसे लेते हैं। इसीलिए हमारे प्रोडक्ट डिफरेंट हैं। सबसे ब्रांडिंग पैकेजिंग जो हम करते हैं, वी मेक श्योर दैट उसमें कुछ भी इट शुडंट बी वेरी एनीथिंग आर्टिफिशियल शुड नॉट बी एडेड। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट है वो एकदम ट्रेडिशनल है, अपन आर्ट को डिपिक्ट करते हैं जो हमारे पहाड़ों में होता है। और जो हमारे हर्ब्स टीज और स्पाइसेस जो भी हैं वो जिस तरह के हम लोग बनाए जाते हैं, तो कोई ऑर्गेनिक हम उसमें हम कोई केमिकल्स नहीं डालते हैं, वी डू नॉट ऐड एनी प्रिजर्वेटिव। सो दैट इज़ द यूएसपी आईपी हमारे सीधे पहाड़ से, डायरेक्टली पहाड़ से आता है, जैसा है वैसा है। हाँ, हम उसकी ब्रांडिंग पैकेजिंग ज़रूर करते हैं, बट इट रिटेन्स इट्स द ओरिजिनल, द फ्लेवर, ओरिजिनल टेस्ट एंड एक्चुअली फूड से, क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पे आजकल बहुत सारी चीज़ें हम वे बोलते हैं वो ऑर्गेनिक होती नहीं, ऑर्गेनिक है ये बंदा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी जो चीज़ें वो ऑर्गेनिक मैं कहती हूँ तो ऑर्गेनिक है, 100% हर्बल है और उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। तो ठीक है, समझ लीजिए। तो अब आप थोड़ा सा ये बताइए हमें कि आप बोलते हो कि ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है, जैसे अभी आप बोला कि ऑर्गेनिक है तो ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। हाउ डू यू मेंटेन दैट? क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑर्गेनिकली बनी होती है, उसका एक लाइफ स्पैन होता है, तो हाउ डू यू मेंटेन दैट ऑथेंटिसिटी? उसमें अभी भी वी कीप ट्राइंग टू, स्पेशली क्या होता है जैसे हमारी चाय होती है, हर्ब्स होती है, स्पाइसेस होती हैं, तो उसमें अगर हम जैसे उनको प्रिजर्व करना हो जैसे हमने बोला, तो हम जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं हम वो भी ऑर्गेनिक यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ों में मैं लौंग डाल देती हूँ, कुछ चीज़ों में कुछ ऐसी हर्ब्स डालती हूँ जिससे वो चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो आई मेक श्योर कि जो हम लोग जैसे कई बार प्रिजर्व करने को हम कुछ ऐसी गोलियाँ डालते हैं जो कि बेसिकली केमिकल होती हैं, बट दैट वी मेक श्योर। और दूसरी बात है ऑथेंटिसिटी में चेक कैसे करती हूँ, दैट आई कीप गोइंग देयर टू द सोर्स, दैट इज व्हाट वी कॉल इट, सीधे पहाड़ से कीप चेकिंग, कीप टेलिंग देम, कीप इंटरैक्टिंग विद देम, एंड देन वी फाइंड आउट सॉल्यूशंस। जैसे एक बार हमारी कुछ स्पॉइलेज हो रही थी बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे। फिर हमने कुछ ऐसी हर्ब्स देखी जो अगर उस बीच में हम डाल दें तो उससे वो उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है जो है वो उसमें से खत्म हो जाता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग समथिंग केमिकल। तो हम इवॉल्व कर रहे हैं एंड दैट वी आर मेकिंग श्योर एंड वी वांट टू मेक श्योर इट इज ऑथेंटिक ऑर्गेनिक, दैट इज व्हाट वी डू। तो जैसे अभी आपने बात करी कि आप फार्मर से हमेशा इंटरेक्टिव रहे, तो आपने ये शुरुआत करी, तो तब आपने मतलब फार्मर से कैसे कनेक्ट किया? क्योंकि बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस बचपन, तो हाउ हैज बीन योर जर्नी विद द फार्मर? लाइक सिंस आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड मेरा जो नानी का घर है सब पहाड़ों में है, तो आई यूज्ड टू गो टू द स्मॉल विलेजेस जो मेरी नानी दादी के टाइम पे, मतलब जहाँ पर कुछ मेरे रिलेटिव रहते थे, उन विलेजेस में जाती थी, फार्मर से मिलती थी और उनसे कनेक्ट होती थी और मैं देखती थी। और स्पेशली जो यंग फार्मर हैं देखते इतने पढ़े लिखे हैं, बट वो नाउ दे आर एजुकेटेड, तो वो उनको टेक्नोलॉजी का पता है, वो सोशल मीडिया फ्रेंडली है। मैं एक जगह गई, एक यंग लड़का था, उसने मुझे इतनी बढ़िया खाना खिलाया, मैं कहा तुम्हें कहाँ से सीखा? उसने कहा वो यूट्यूब है ना, आजकल तुम सब खुद से सीखा। तो उसने वही चीज़ें, वहाँ की चीज़ों को यूट्यूब से कुछ रेसिपी देख के उसको कुछ बनाया। सो देन आई रियलाइज, लुक एट दीज यंगस्टर्स, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एजुकेटेड, वो वहीं पे ये कर रहे हैं। आपको पता होगा पहाड़ों में बहुत ज़्यादा आजकल ना वाइल्ड एनिमल्स का मिक्स है। एज अ रिजल्ट जो खेती बाड़ी है बहुत कम हो गई है। तो those farmers, they decided that they'll grow tea, they grow herbs, because आपको पता हो जो teas और herbs होती हैं उनको ज़्यादा बंदर या ये लोग चाहिए, उसको नुकसान नहीं करती है। So this decided changed from these kind जो खाने का जो बनाते थे उससे ये शिफ्ट करें, वो तो कुछ होती नहीं थी, उससे बंदर खा जाते थे या वाइल्ड एनिमल्स। So and then small farmers coming together, making cooperatives. There are a lot of, I've seen government efforts to form cooperatives, help them in that. वो भी है। तो मैं वहाँ जाती थी, उनसे मिलती थी। जो मैं हमेशा लेडीज़ के पास जाती थी जो घर में काम भी कर रही है, मेरे पास हमेशा कुछ लेडीज़ अलग से आती थी और मुझे अपने कुछ सामान दिखाती थी, देखो दीदी हमने ये बनाया है।
मतलब इन स्पाइट ऑफ बीइंग बिजी, वो कहते हैं हमारे दिन सवेरे 4 बजे शुरू होता है और हम रात को 10 बजे ही सोते हैं। तो उसके बीच में जब दिन का जब टाइम होता है, जब हम बैठते हैं चाय पीने को, तो वो कभी कुछ अपना जो हमारा उत्तराखंड का ट्रेडिशनल एपड़ आर्ट है वो करती थी। उन्होंने मुझे दिखाया और वो हमेशा कहती थी हमारे लिए कुछ करो ना, हमें भी अपनी इनकम बढ़ानी है। तो ये सब चीज़ें जब मैं उनसे इंटरेक्ट की तब मेरे को समझ में आया, यस सी इवन इफ पीपल लाइक अस, हम लोग मिल के अगर हम करें, वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। दे हैव द टैलेंट, बट इफ वी कैन, हम उसके प्रोडक्ट को मार्केट करें, उनको एक वाइड मार्केट दें। तो मैं तो कहीं भी जाती हूँ, कहीं से मिलती हूँ, बाहर से भी लोग आते हैं, उनको बताती हूँ इसके बारे में। दैट बेसिक दैट थिंग आई रियली वांट कि जो हमारा उत्तराखंड की जो ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, एवरीबडी शुड नो अबाउट इट। एंड आई फील दैट आई शुड बी अ मीडियम वेयर मैं सब लोगों को बता सकूँ। एंड ये मतलब सीधे पहाड़ से यहाँ नहीं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल नो कि सीधे पहाड़ से ऑथेंटिक ओरिजिनल प्रोडक्ट्स फ्रॉम उत्तराखंड। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन पूछूंगी शायद मैं आपसे अब, कि हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं मुझे पैसा कमाना है, मुझे इतना बड़ा बनना है, तो हाउ कैन यू, मतलब आपके अंदर वो क्यों है कि मुझे फार्मर्स के बारे में या जो विलेजेस में लोग हैं उनके बारे में, हाउ डू यू थिंक एंड हाउ डू यू क्रिएट अ डिफरेंस, और आप ऑडियंस को क्या बताना चाहिए इससे कि क्यों हमेशा हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, एंड वी शुड थिंक ऑफ द सिटी एज वेल एज ऑफ द स्टेट एज वेल। आई रिमेंबर मुझे ना किसी ने कहा था कि अगर हर इंसान अपने अलावा 2 लोगों के बारे में सोचे ना, तो वर्ल्ड एक बहुत बेटर प्लेस हो जाएगा। मतलब उसने मुझे वो बात बहुत स्ट्राइक की। और मुझे एक चीज़, शायद वो नारायण मूर्ति ने बोला था, उन्होंने कहा था कि इफ यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस एंड यू बिकम अ रनिंग अ बिजनेस, दैट इज यू आर डूइंग द सबसे ज़्यादा सोशल वर्क आप करते हो, क्योंकि आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो मुझे लगता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना और दूसरों के बारे में सोचना जो है, ये जो चीज़ें थे, मुझे मतलब मेरे स्टक अ कॉर्ड विद मी। और मुझे लगा कि देखो, जब मैं आई एम ट्राइंग टू एम्पावर दोज पीपल, द विमेन देयर, अपने छोटे वे में, मेरे को बहुत ही छोटा इंटरप्राइज है, बट उसमें मैं खुद से मुझे कितनी चीज़ें मैंने दी। और डेफिनेटली इट्स नॉट दैट आई एम हियर इन अ बिजनेस, आई एम ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, बट उसको जो हेल्प करके, जो तुम वैल्यू, जब तुम कोई चीज़ देखते हो, जैसे यू एड वैल्यू टू पीपल अराउंड यू, तो वो जो कहते हैं ना किक तुम्हें देती है, वो जो खुशी देती है, वो इट्स डेफिनेटली बेटर एंड मनी विल कम। मुझे लगता है कि जब हम किसी अच्छे काम के लगे, हमें पैसा बिल्कुल मिलेगा। एंड स्लोली आई एम रियली हैप्पी, जैसे मैं देखती हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे किसी एक लड़की ने शी डिसाइडेड टू ट्राई वन ऑफ आवर सॉल्ट, जो हम हैंड पाउंडेड सॉल्ट बनाते हैं। ये रेसिपी मेरी नानी दादी लोग बनाते थे ट्रेडिशनल, फिर सालों से वो चली आ रही है। तो वो हमने वो जो नमक बनाया, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मुझे बना के दिया, तो उन्हें इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट, उनका कोई एक मीटअप था, उन्होंने बिग ऑर्डर विच आई एम रियली लुकिंग फॉर, मुझे अच्छा खासा एक बड़ा ऑर्डर मिल गया। तो मुझे लगता है कि अगर मैं जेन्युइन रहूँगी, अपने प्रोडक्ट ऑथेंटिक रखूँगी और इनके लिए करूँगी, डेफिनेटली आई विल गेट गुड ऑर्डर्स एंड माय बिजनेस विल एक्सपेंड। थोड़ा सा ना आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में हमें बताइए, क्या क्या प्रोडक्ट्स है, तो थोड़ा सा हम इस पे जानने को मिले कि सीधे पहाड़ पे अगर हम जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। सीधे पहाड़ में हमारा बेसिकली वी हैव टीज हैं हमारी, हर्ब्स, स्पाइसेस एंड इवन पल्सेस फ्रॉम उत्तराखंड। तो हमारी चाय जो है, जो ट्रेडिशनल कुछ चाय हैं हमारी, जो सारे जो प्रोडक्ट हमें यूज़ किए वो वहीं से मिलते हैं। जैसे एक मेरी बहुत ब्लेंड मैंने बनाया है, वी कॉल इट द हर्बल टी। तो वहाँ जितनी जड़ी बूटियाँ होती हैं, इंक्लूडिंग एक आपने सुना होगा एक गुच्छू बूटी होती है, वी कॉल नेटल, एंड यहाँ पे गढ़वाल में उसको बोलते कंडाली। तो उसको मैंने ऐड करके, वो जो एक स्टोर हाउस ऑफ बेनिफिट्स, कैन क्योर यू ऑफ एड्स, तो ऐसे सब चीज़ें बना के ब्लेंड करके हमने एक ब्लेंड बनाया हर्बल टी। तो तुम्हारे को सीजनल एलर्जीज में, if you have allergies for your cold and cough, there is nothing better than that. Then we are also telling you, पहाड़ों में एक जंगली रोज आता है, उसको बोलते हैं दमस्क रोज, which is not only that smells so good, उसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं। अगर कोई ले for your तुम्हारे ब्लड प्रेशर के लिए, for your skin, for your hair, तो वो उसकी मैंने चाय बनाई। जब मैंने चाय बनाई है, वो खाली उनके पेटल्स हैं जिनको मैंने ड्राई करके, क्रश करके, उसमें थोड़ा सा एक दो और हर्ब्स डाली हैं, और वो हमारी ब्लेंड बनी है चाय की। फिर हमारी जो हम जो चाय पीते हैं, ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी हमारी बहुत अच्छी है। लोग जो है फर्स्ट फ्लश होता है,
चाय जब निकाली जाती है उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी दिखती है। तो सबसे पहले चाय निकालते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लश, दैट इज़ अ स्प्रिंग टाइम में वो निकाली जाती है। तो क्या होता है उस चाय में जो आसपास के वहाँ के फूल होते हैं ना उनकी खुशबू के साथ आती है। तो हमारी जो फर्स्ट फ्लश है उस समय वहाँ पे पहाड़ में माल्टा होता है और बड़े अच्छे से फ्लावर्स होते हैं, तो उसमें उसकी खुशबू आती है। एंड वो मेरा एक कस्टमर ने मुझे, मैंने उसको वो चाय दी तो वो थोड़ा सा अप्रेंसिव था क्योंकि वो बाहर से दार्जिलिंग से वो चाय लेकर था। जब उसने की और उसने मुझे एक मैसेज दिया तो आई रियली फेल्ट दैट माय डे वाज डन। उसने कहा कि आपकी जो चाय में वो जो खुशबू मुझे आई उत्तराखंड की, इट वाज रियली गुड। सो दैट इज हाउ। एंड देन वी हैव हर्बल टी है हमारी, हमारे पास बुरांश की चाय है। बुरांश जो एक फल होता है यहाँ पे लाल रंग का फूल, वो कहते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, वो कहते हैं तुम्हारे एनीमिक लोगों के लिए, वो उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हम तो उसी बुरांश के फूल की हमने चाय बनाई है एंड वो तो मेरी बहुत लोग पसंद करते हैं वो वाली चाय। गुड़हल के फूल की हाइबिस्कस टी इज़ वेरी गुड। यहाँ कैमोमाइल विच अगेन ग्रो उत्तराखंड में ही ग्रो करती है। हर्ब्स में हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी हर्ब्स हैं, जैसे रोजमेरी है हमारी वहाँ से, लेमन ग्रास है, फिर हमारी हिमालयन काली तुलसी कितनी कहते हैं आयुर्वेदिक में तो उसको बहुत यूज़ करते हैं। और हमारा सबसे एक जो कहते हैं ना सबसे यूएसपी वाला एक आइटम है हमारा आमा हल्दी। आमा होते हैं पहाड़ में कहते हैं ग्रैंड मदर को, तो वो हमारी जो हल्दी है उसको हम 3 साल के बाद हार्वेस्ट करते हैं। तो कर्क्यूमिन लेवल जो होता है उससे पता जाना है तो उसको हाईएस्ट है। सो दैट यू नो एवरीबडी यू नो इट इज सो डिफिकल्ट टू गेट दैट हल्दी और वो हम ग्रो करके दे रहे हैं। इट्स कॉल्ड आमा हल्दी। और जब आप वो यूज़ करें तब आपको समझ में आता है कि जो हम हल्दी हम खा रहे थे वो खाली रंग था, कोई हल्दी नहीं था। और किसी भी आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती हैं, किसी भी तरह का दर्द हो, इन्फ्लेमेशन हो, देयर इज आमा हल्दी की फॉर्म। इनफैक्ट मेरी आई स्टार्ट माई डे विद दैट आमा हल्दी। आई बॉयल आमा हल्दी इन वाटर एंड आई हैव दैट इन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारा मुंशियारी से हमारा एक कोऑपरेटिव लेडीज़, ऑल लेडीज़ का कोऑपरेटिव है जिससे हम वहाँ से दालें लाते हैं। वहाँ से बड़ी अच्छी हर्ब्स मिलती है, पता नहीं आपका नाम सुना होगा, इसको हम बोलते हैं एक गंदरेनी करके एक हर्ब होती है विच यू नो क्योर्स यू ऑफ एनी काइंड ऑफ क्रैम्प्स एंड स्टमक एक। वो बहुत स्मेल देती है अगर आप खाने में डालोगे। वो है जम्बू, हम एक होता है जो हम जैसे आप लोग जीरे से दाल छौंकते हैं, छौंकने के लिए वही यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो हर्ब विच गिव्स अ ब्यूटिफुल अरोमा। वो सब चीज़ें में देखते हैं, वो जो चाय स्पाइसेस। और हम देखती और भी इनफैक्ट बियॉन्ड द प्रोसेस हम देखते हैं कुछ अच्छी चीज़ है। और मैं जो डिफरेंट गांव में जाती हूँ मैं देखती हूँ अरे यहाँ पे ये ऐसा होता है, ये बढ़िया है। तो इसलिए हम करते रहते हैं। स्टिल वर्क इज अंडर प्रोग्रेस एंड आई एम ट्राइंग टू डू व्हाटएवर आई कैन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। तो कितना अच्छा लगता है सुन के। और साथ ही साथ ये भी सोचती हूँ कि जैसे अभी हमारे थोड़ी देर पहले भी इस बारे में बात हो रही थी कि थोड़ा चैलेंजिंग होता है एक फार्मर को कमिट करना, ठीक है कि हम आपको वापस खाएंगे, आपका सामान बिकेगा, या एक विविध को हम अगर ये बात बोले कि नहीं आपका सामान बिकेगा हम अपना वापस आएंगे, तो वो विश्वास आपने कैसे क्रिएट किया या चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा मुझे चैलेंज क्या है, बिकॉज ऑफ यू नो द वेदर कंडीशन, वहाँ की वेदर कंडीशन है और तो थोड़ी कनेक्टिविटी इशू है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इतने बढ़िया नहीं है तो इसलिए कई बार वो बहुत मुझे दिक्कत आती है। और क्या है कि अगर स्केल में जैसे बढ़ाना चाहूँ प्रोडक्ट्स जो मेरे टी स्पाइसेस डेफिनेटली हम लार्ज स्केल में हमारे पास प्रॉब्लम है। बट जो हैंडीक्राफ्ट वाला आइटम है, हैंडीक्राफ्ट हाथ का बना होता है, तो हम पहले शुरू में वो लड़कियों को कुछ ट्रेन होती है, फिर हमने ट्रेन करते हैं तो बनाते हैं। बट वो अगर हम बल्क में बनाना चाहेंगे तो नो टू हैंड्स आर सेम ना। तो ये लोग और कस्टमर को रियलाइज करना कि एग्जैक्टली मैं 100 पीस में एग्जैक्ट नहीं दे सकती अगर आप बोलो, क्योंकि वो तो हाथ का काम है ना। तो इसलिए वो थोड़ा उसको स्केल करने में थोड़ी मुझे दिक्कत आती है। बट अभी भी हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं और वो खुद से इंथुजियास्टिक हैं कि नहीं नहीं हम ये करेंगे। और नई नई चीज़ें जैसे मार्केट में आती हैं, मैं कहती हूँ चलो इसमें हमारा ट्रेडिशन। अब मैं आजकल क्या करी फ्यूजन, जो नई नई चीज़ें हैं जो यूज़फुल हैं, टी कोस्टर आप देखिए, आपके पास ट्रेज होती हैं आप यूज़ करते हैं, आप पेन्स यूज़ कर रहे हैं, ग्लासेस हैं, उनमें मैं वो ट्रेडिशनल एपन आर्ट डाल के उनको लोगों को कराना चाहती हूँ। तो उसमें हाँ दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि
हैंडीक्राफ्ट मैंने बताया। हर्ब टी स्पाइस में मुझे बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन और वो सब ये अभी इतना प्रोफेशनल नहीं हुआ है, रेट्स बहुत हर बार डिफरेंट रेट देने पड़ते हैं, वो थोड़ा चैलेंजिंग है। यस, आई थिंक वी विल बी एबल टू ओवरकम। डेफिनेटली, मतलब इस एज पे आके अगर आप ये सारी चीजें सोच रहे हो, ये चीजें कर रही हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू मैम, मतलब लिटरली कुछ अलग ही चीज है ये तो थोड़ा सा और बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है एंड कैसे एकदम बिजनेस में आ गया। वो ये मेरा एक पहला एक्सपीरियंस है, मतलब मेरी फैमिली में दूर दूर तक बिजनेस का कुछ अता पता नहीं, बिकॉज हम सब सारे, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड भी एक ब्यूरोक्रेट थे, मेरे फादर भी गवर्नमेंट में थे, तो सारे हम सब गवर्नमेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो हमारे लिए बिजनेस, इनफैक्ट पहाड़ी लोगों में भी बिजनेस करना तो एक ना ऐसा वर्ड है, जी ये बिजनेस करती है, मतलब वो ज़्यादातर सब सर्विस में होना इम्पोर्टेंट था। बट सिंस मेनली बिकॉज थैंक्स टू माई हस्बैंड जॉब, आई ट्रैवल ऑल ओवर द कंट्री। तो मैंने वहाँ के कल्चर देखे, वहाँ के ट्रेडिशंस देखे, वहाँ की हैंडीक्राफ्ट देखे, वो मेरा पैशन था। मैं जहाँ जाती थी, इनफैक्ट मुझे याद है कितनी मेरी फ्रेंड्स कहती थी किसी की शॉपिंग करनी हो तो कहीं जाना, अच्छा वहाँ तो कुछ अच्छी चीज़ देखे हैं। मैंने उसे कभी कमर्शियली नहीं किया। आई न्यू whenever I used to go, my husband used to go on his जब जाते थे किसी अपने टूर में, तो मैं वहाँ की छोटी छोटी जगह जाके छोटी मार्केट में ढूंढती थी वहाँ का क्या ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वहाँ के हैंडीक्राफ्ट मुझे फैसिनेट करते थे, लोगों के लिए लाती थी। और पहाड़ में तो क्योंकि मेरा गाँव, हमारा घर है वहाँ पे, मेरे नाना का गाँव है वहाँ पे, तो वहाँ की छोटी छोटी चीज़ें लेके आती थी, अपनी फ्रेंड्स को गिफ्ट करती थी। तो सब लोग मुझे कहते थे ना तुम अपनी वो वाली चीज़ लाओ, तुम्हारी वो दाल हमें बहुत पसंद है, तो ऐसे में करती थी। देन यू नो मेरे को लगा कि लोग पसंद करते हैं, तो मैं रियली वांट की, और मेरे जब अपने बच्चे हुए मैं देखा कि उन बच्चों में डिस्कनेक्ट है अपने ट्रेडिशंस, अपने रूट से। सो आई वांटेड कि ऐसा नहीं होना चाहिए, यंगस्टर्स को दे शुड बी कनेक्टेड टू देयर रूट्स। तो मुझे लगा कि मुझे रिवाइव करना चाहिए उत्तराखंड में जो हमारे इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ नो सो मेनी थिंग्स, तो वो हमें रिवाइव करना चाहिए। तो आई थिंक दैट मेड मी, एंड आई लाइक टू इंटरेक्ट विद पीपल। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, अलग अलग तरह, जैसे मैं गांव में जाती हूँ, मैं विलेजेस में जाती हूँ, मुझे लगता है कि हम जो अपने अर्बन लाइफ में रह रहे होते हैं ना, मुझे लगता है कि हम कितना कितना हमारे वार्म्थ जो हमें मिसिंग है हमारे में। मैं कहीं भी चली जाऊँगी, ऐसे भी लोग मुझे आ जाओ दीदी चाय पी के जाना, किसी के घर में भी घुस जाओ, मतलब दैट इज सो ओपन एंड वार्म। With staying in Delhi, staying in different parts of the country, I found this was missing जो हमारे उत्तराखंड में था। So that made me, तो जैसे आपने बोला कि बड़ा डिस्कनेक्ट फील होता है, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट रूरल इंडिया, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पे बहुत वर्क फील होता है, बट जब हम एकदम से सिटी में आ जाते हैं, किसी बड़े सिटी में चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी वर्क मिसिंग होता है। बिल्कुल। तो आप कैसे, मे बी टू द यंगस्टर्स और टू योर ओल्ड चिल्ड्रन, या मैं भी आपके सामने बैठी हूँ, तो आप क्या हमें सजेस्ट करना चाहोगे कि हमें क्यों वो वर्क मिस नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यू आर कनेक्टेड टू योर रूट्स। मैंने साउथ में ये चीज़ देखी, जब साउथ में यंगस्टर्स हैं वो अपने ट्रेडिशन और से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जो मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में मिसिंग है। हम इतने ऑर्गेनाइजेशन के चक्कर में हो गए। मुझे लगता है पहले मुझे याद है कि हम जब हम दिल्ली में बचपन में थे, लोग को ये नहीं कहते थे कि वो पहाड़ से आए, उन्हें अपनी चीज़ें दिखाने में, अपने ट्रेडिशन दिखाने में शर्म आती थी। इट्स वॉज आई फील इज वेरी रॉन्ग। बट अब मैं देख रही हूँ ये वाली जनरेशन जो है, आई हैव सीन दैट दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द रूट्स। मेरा बेटा है जो मुझे मेरी इस एंटरप्राइज में, हम एक रजिस्टर्ड एलएलपी है उसमें हेल्प करता है, एंड मैं उसके संग, मेरी बेटी है जो मुझे हेल्प करती है, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं, क्योंकि जब भी मुझे हेल्प करें मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन लोगों का भी कनेक्शन बढ़ रहा है, और फिर उससे होते होते रिपल इफेक्ट। मेरी बेटी की फ्रेंड्स हैं, बेटे के फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं अच्छा अभी तुम्हारे पहाड़ का है, हमारे को भी बताना ये कैसे होता है। सो मेनी टाइम उस दिन उसने बोला वो आपकी काली वाली जो दाल होती है भटकी, वो दिखाना, ये कैसे हो रहा है, बिकॉज थैंक्स टू सोशल मीडिया यू हैव सच यंग ब्लॉगर्स जो बता रहे हैं अपने ट्रेडिशन के बारे में, एंड यू नो पीपल रियली वांट टू नो। तो मुझे लगता है ये कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यू शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड टू योर रूट्स, एंड कनेक्टेड टू रूट्स नहीं कि हमने कुछ त्यौहार मना लिए, तुम्हें वहाँ जाओ और देखो एंड सी हाउ यू कैन लिटिल वेज यू कैन हेल्प। जैसे मैं अगर किसी का प्रोडक्ट नया आया है, उसको जगह नहीं मिल रही है कि तो उसने कुछ बनाया है, वो पहाड़ों से है, जैसे एक लेडी ने कहा कि मैं ये बनाती हूँ, मैं उसको अगर थोड़ा लोगों में दिखा सकूँ, उसको मार्केट
better than that. So that is what I feel that people should be connected, especially youngsters with their roots. And I feel आजकल youngsters बहुत ज़्यादा connected हो रहे हैं और वो थोड़े ये जो अपनी जो लाइफ से जो जितना स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे थोड़े डिसल्यूजन होके मैंने देखा है कितने लोग मुझे यंगस्टर्स मिले हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है, किसी ने इंजीनियर है, बट वहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं. आई मेट दिस यंग बॉय, आई थिंक वो कुछ हेम्प के ऊपर करके वही करके कर रहा है. तो आई फील थिंग्स आर मूविंग इन दिस वे. इट्स अ न्यू इंडिया एंड मुझे लगता है कि अगर हम ऑल ऑफ अस टुगेदर and हम at this age and we can do it, so obviously youngsters can do it and people can do it. तो साथ ही साथ ऐसा आपने सोशल मीडिया की बात करी, तो व्हाट डू यू फील अबाउट सोशल मीडिया, कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं इम्पोर्टेंट? सोशल मीडिया में तो कहती हूँ सोशल मीडिया मुझे लगता है देखो जैसे मेरा बेटा बोलता है कि मोदी जी ने ये इंटरनेट इतना सस्ता कर दिया तो उसके फायदे भी होंगे बट डिसएडवांटेज बहुत है. यू हैव पीपल मेकिंग रील, बट आई फील कि फायदे बहुत हैं. अगर जब गांव में जाती हूँ ऐसे छोटे छोटे गांव में गई हूँ, यूट्यूब से वो कितनी चीज़ें सीख रहे हैं. आई मेट अ यंग गर्ल, वो अपनी गायों को लेके चला रही थी और कहती वो क्या होती चौपाल में शी वॉज अ जॉकी एंड शी टोल्ड मी कि क्या करती वो पढ़ती भी है, वो अपने गाँव में अपने खेती बाड़ी भी कर रही है. तो दिस इज थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड शी इज़ कनेक्टेड. और मैं देखती हूँ कि भाई कितनी चीज़ें हैं और मैंने कही आप देखो ब्लॉगर्स देखो सोशल मीडिया कितनी चीज़ें पॉपुलर करते हैं. हम लोग कई किसी डिफरेंट स्टेट के बारे में कुछ चीज़ें जानने लगे थैंक्स टू सोशल मीडिया. अब आजकल आप देखो सारे फेस्टिवल्स, नोबडी न्यू अबाउट सर्टन फेस्टिवल्स, बट अब हर फेस्टिवल क्यों, क्योंकि हम लोग उसको थ्रू सोशल मीडिया पॉपुलराइज कर रहे हैं. ये बहुत अच्छी चीज़ है. पर हाँ टू मच किसी का भी खराब हो तो साइड इफेक्ट्स कुछ खराब हैं, बट आई फील कि इट्स अ गुड. तो आपने जैसे मेंशन किया कि बहुत सारी विलेज यहाँ पे सेंटर कनेक्टेड है फ्रॉम द विलेज, तो कैसे आपने उनका भरोसा जीता और कैसे अब आप उनके साथ चल रहे हैं? हाँ मतलब इनफैक्ट मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी. मेरे को एक लेडी है वेरी गुड आर्टिस्ट और मैंने उसे कहीं किसी के थ्रू मुझे उसने बताया कि अच्छा पेंट करती है, फनार्ट हमारा होता है काम का. तो मैं उससे मिली. एक टाइम वो था कि उसको कुछ अपना छोटा छोटा काम करने के लिए या अपने हस्बैंड से बोलती थी सामान लाने के लिए उससे. अगर किसी हम लोग को जैसे अगर किसी मीडियम में हम बना रहे हैं तो जैसे लकड़ी में बना रहे हैं तो लकड़ी के उसको बनवाना, पट्टे बनवाना, वो सब करने के लिए तो हमेशा उस पर डिपेंडेंट रहते हैं. मुझे इतना अच्छा लगता है. और मुझसे कि आप बात करें आज नॉट ओनली मतलब वो सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि उसने हम लोगों को तो इतने लोगों को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सप्लाई की है. उसने उसके ऑर्डर उसने विदेश जाके खुद गई एंड बाय पोस्ट शी सेंड ऑल दोस पीपल को जो अपना कुछ हैंडीक्राफ्ट के आइटम भेजे. पूरा शी द होल प्रोसेस शी डिड ऑन हर ओन वो. एंड शी डिसाइडेड कि अब मैं अपना जॉइंट अकाउंट रखूँगी, मैं अलग से मेरा एक सेपरेट बैंक अकाउंट होगा इसमें आई विल एंड शी डूइंग सो वेल. दैट इज व्हाट यू नो मेरा ड्राइविंग फोर्स यही है. एंड यू हैव मतलब कुछ तो लोग हैं लेडीज इतनी चीज़ों से जूझ रही हैं. और सबसे अच्छी बात मुझे पहाड़ के में लगी मतलब उनकी अगर लाइफ देखो यू है बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, कुछ इतनी इशूज हैं बट वो फिर भी इतनी खुश हैं. हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं हम उतने खुश नहीं रहते फिर. सो दैट यू नो दैट डेफिनेटली मेरे डिफरेंट. इनफैक्ट कई बार मैं सोचती हूँ चलो हैंडीक्राफ्ट में बहुत थोड़ा सा चैलेंजेस हैं बट वो जो लेडीज़ के बारे में सोचती हूँ अगर कुछ दिन से मेरा कुछ बना नहीं होता कहती मुझे फ़ोन आ जाता है कि आज कुछ नहीं बनाना अभी क्या, आज बहुत दिन से आपने कुछ बोला नहीं. तो मुझे लगता है कि और सबसे बड़ी बात है जब वो सारा काम खुद करती है. एक ऑर्डर था मुझे रातों रात देना था. वो लेडी जो थी रात के 11 बजे वो ISDT में जाके उसने मेरा सामान रखवाया ताकि मुझे सवेरे नहीं हो. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ वो अपना उनका हार्ड वर्क उनका प्रोफेशनलिज्म. सो दैट इज़ द सोशल इम्पैक्ट आई फील लाइक इन माई. जबकि मेरा तो बहुत ही छोटा एंटरप्राइज है. अगेन आई एम टचिंग अ लाइफ अराउंड 30 to 40 लेडीज आर देयर जो किसी काम देती हूँ और उसको भी हम एक्सपैंड कर रहे हैं. बट येस इट इज सोशल. तो जैसे अब हम जानना चाहते हैं कि आप अपने कंज्यूमर्स को इस चीज़ को लेकर कैसे एजुकेट करते हैं कि क्यों हमें अपने ग्राउंड से कनेक्ट करना चाहिए, क्यों हमें बेसिकली जो फार्मर्स कर रहे हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए. तो मैं यही करती हूँ जब मैं एग्जीबिशन में जाती हूँ या कोई किसी मीटअप में जाती हूँ ज़रूर बताती हूँ तो उनको कि
मैं कैसे ये सामान कहाँ से आया, किसने कैसे किया, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये कहाँ पहाड़ में उगता है, कैसे, वो मैं बताती हूँ. आई ट्राई टू टेल देम अबाउट इट. एंड यू नो एवरीबडी लव्स अ स्टोरी. टू टेल देम अ स्टोरी, एक्चुअल रियल स्टोरी, मतलब ऑथेंटिक स्टोरी, वो बहुत इंस्पायर होते हैं. मैंने देखा कई लोग को नहीं भी खरीदना होता है, वो जब मैं उनको वो स्टोरी बताती हूँ उसके बिहाइंड कि जिसने बनाया उस लड़की के बारे में, मैंने बताया एक लड़की है जो कि पढ़ाई भी कर रही है और साथ में ये वाला काम कर रही है, वो बहुत इंस्पायर होते हैं और खरीदती हैं बिकॉज दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट. मुझे लगता है कि अगर हम स्टोरी बताएं सबके बारे में, छोटे फार्मर्स की, जो फार्मर्स का कोऑपरेटिव है, आप देखो कितने छोटे 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 फार्मर्स हैं वहाँ पर. एक मुझे स्टोरी बहुत इंस्पायर करती है. वहाँ पे एक लेडी थी जो उस फार्म में, जो हमारे चाय का बगीचे में, वो वहाँ पे उनकी रखवाली करती थी. तो सोचो उस लेडी ने एकदम उसने बाग में वहाँ पे अटैक किया, वहाँ पे तो ये सब रहता है, तो उसने अपने कुत्ते को बचाने के लिए शी फॉट विद देम. उसकी हाथ वाथ में चोट लगी, इतना कुछ उसको स्टिचेस आए, बट शी डिड नॉट गिव अप. सी द काइंड ऑफ रेजिलियंस दैट इज देयर ना. तो ये मुझे लगता है कि जब आप पहाड़ों से कनेक्ट होते हो, वहाँ के लोगों से कनेक्ट होते हो, then you realize not only they are strong, they are sturdy, but very warm people. अगर उनको आप बोलो कि कुछ करो उनके लिए, तो they'll go out of the way. तो मुझे लगता है जब वो इतना आउट ऑफ द वे जा रहे हैं, तो हम अगर एक स्टेप फॉरवर्ड लेंगे तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. अच्छा, थोड़ा सा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. जैसे अभी आपने बोला कि हम कोई स्टोरी बता देते हैं ना, तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाती है और वो शायद कस्टमर खरीद के ले जाते हैं. तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से अब आप इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हो? That is what they say, you know, for the pitch that I go in for. I always try to tell them the story about अपने प्रोडक्ट की जो स्टोरी है. अभी मैं चाहती हूँ सोशल मीडिया में अभी उतना मैं, हमारा पेज है सीधे पहाड़ से, तो इंस्टा में मेरा पेज है, तो उसमें अभी हम वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, उसको थोड़ा मैं और पॉपुलर कर दूँ और लोगों को बताऊँ उसके बारे में. क्योंकि उससे अगर हम बताएं अपने प्रोडक्ट के बारे में, और तभी कहते हैं जब मैं मुझसे कोई प्रोडक्ट कहते हैं आप दिखाओ ये कहाँ से आया, कैसे बना, तो वो पिक्चर्स दिखाते हैं उनको कि ऐसा था, तो ये ऐसा बना. जैसे वो चाय की हमारी स्टोरी, जब हम उसको तोड़ते हैं प्लग करने, उसमें कितनी सारी औरतें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं. प्लग करने का भी एक तरीका होता है, वो दिखाया मैंने उनको. और फिर उसको कैसे वो लोग उसको कैसे रखते हैं, स्टोर कैसे करना, उसको कैसे गर्म करना होता है, उसको धूप, कुछ चीज़ें चाय होती है जो तेज़ धूप में नहीं रख सकते, उनको मैं चाय में रखना. तो ये भी तो इतनी टेक्नोलॉजी है विच वो उन लोगों को पता है. हम लोग सीखते हैं, वो लोग बचपन से वो चीज़ सीखे हैं, क्योंकि मैंने देखा है ना. मुझे ये लगता है कि जो एक नॉर्मल पहाड़ी होता है वो नेचर से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड होता है, और वो समझता है कि अब आप देख लीजिए जितनी सारी जो मेडिसिन है, ज़्यादातर जो जो वर्ब से कहीं से तो आती है पहाड़ों से. सो दे ऑल नो किसका क्या क्योर है. मैं एक बार जब जंगल में वहाँ पे गई थी खेतों में, तो मेरे को वो जोंक चिपक गई थी मेरे, तो दे टोल्ड मी, एक उन्होंने पत्ता दिखाया, उसको बोला ये क्योर है, उसको आप लगाओ तो आपका ये ठीक हो जाएगा. सो दैट आई फील ये तो एक मतलब हमें उनसे सीखना चाहिए. मतलब बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं इन सारी चीज़ों के, और जो मैं देख रही हूँ कि आजकल लोगों को पता लग रहा है कि रीजनेबल, तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है. और हमें लग रहा है कि हम वापस उसी से कनेक्ट हो रहे कनेक्ट हो. हैं. तो वो मुझे लगता है कि ज़रूरी है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ थोड़ा सा आप उधर से उधर की तरफ कनेक्ट होंगे तो मे बी आप अपनी वैल्यू भी क्रिएट करेंगे और हमारे स्टेट की भी वैल्यू करेंगे. तभी तो मुझे लगता है वैल्यू बेस्ड स्टार्टअप बोलते हैं, तो वैल्यू बेस्ड यही होना चाहिए. एक स्टोरी और एक वैल्यू. वैल्यू सही बोला. तो अपने आपकी कुछ पर्सनल फेवरेट प्रोडक्ट्स कौन से, कुछ दो अगर आप बताएं. एक तो मैं अपनी, मुझे आमा हल्दी बहुत पसंद है, जो आमा हल्दी है ठीक है. वो मुझे बहुत पसंद है. मेरी जो हर्बल टी है जो मैंने ब्लेंड बनाया है बहुत सारे हर्ब्स का, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है. वो सब सारी चाय बहुत अच्छी लगती है. और जो स्पाइसेस हमारे हैं पहाड़ों के, जो स्पाइसेस, एक हमारा येलो चिली पाउडर होता है, पीली मिर्ची होती है, जो हमें नहीं पता था कि ये जो है सब येलो ग्रेवीज में जब आप पानी पूरी बनाते हैं और कहाँ कहाँ नहीं यूज होती, वो येलो चिली पाउडर जो नॉर्मली हम लोग ग्रेवी में लाल लाल रंग होता है, वो जो पीली येलो चिली पाउडर होता है वो अलग ही एक उसमें ना एक डिश को अलग फ्लेवर gives you, वो एक बहुत अच्छा है. हाँ, बट हर एक चीज़ मेरी फेवरेट है. मुझे लगता है
क्योंकि मैं उसके बारे में देखती हूँ, पढ़ती हूँ, और आप कहते हैं ना सोशल मीडिया, थैंक्स टू सोशल मीडिया मैं गूगल में देखती हूँ कि कहाँ कहाँ बेनिफिट्स है, लोगों से पूछती रहती हूँ, आई कीप आस्किंग देम कैसे वे में लें, क्या करें। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग, ट्राइंग। मैं अपने छोटे मोटे तरीकों से कोशिश कर रही हूँ। तो इसी के साथ में भी हमारा जो कल्चर है उत्तराखंड का वो आप शोकेस करेंगे, तो अंदर से क्या फीलिंग है आपके पास? बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी, इतने देर को मुझे बोलते हैं कौन से हैं, सलमान खान मेरा वीडियो किक ड्रेवली वीडियो सब, स्पेशली जब लोग कहते हैं ना ये प्रोडक्ट है तुम्हारा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। और फिर और स्पेशली हैंडीक्राफ्ट का जब कोई अच्छा मुझे कोई कमेंट आता है किसी से, समझी अप्रिशिएट में इमीडिएटली जिसने बनाया होता है उसे फ़ोन करके बोलती हूँ, वो इतनी खुश हुई। मैंने ये किसी को बताया, एक बड़ा सा एक ऑर्डर था कुछ हैंडीक्राफ्ट का, तो वो मैंने उस लेडी को बताया, वो रोने लग गई, उसको रोना आया, मुझे रोना आ गया। मतलब देखो कुछ ऐसा तो, एंड यू नो मैं आई ऑल्सो मेक इट अ पॉइंट, हम मुझे लगता है इस चीज़ में हमें शुड वर्क ऑन इट, कि जो तुम्हें बना के दे रहा है, जो कर रहा है, दैट पर्सन शुड बी पेड अ मैक्सिमम। मुझे लगता है उसको सबसे बड़ा चंक ऑफ मनी जाना चाहिए। अगर हम थोड़ा कहते हैं ना ईज ऑफ बिजनेस कर लें, जो हमारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो और बाकी अगर उसमें हम पैसा हमारा खर्चा कम हो जाए, और हम उनको जिनसे बनाते हैं उनको हम ज़्यादा दें, तो डेफिनेटली विल बी एबल टू डू इट। कंट्रीब्यूशन की बात तो आप कर रहे हैं, बट अगर हम दूसरी साइड से देखें तो ऑपोजिट होता है शायद, कि ज़्यादा पैसा सेलर रख लेता है और फार्मर्स को या छोटे लोगों को पैसा कम मिलता है, ऐसा क्यों है? देखो तुम अपना मार्जिन तो हमें भाई ऑब्वियसली जब हम बिजनेस में आए हैं, जो मार्जिन है तो तुम किस लिए कर रहे हो बिजनेस में, प्रॉफिट के लिए कर रहे हो। बट प्रॉफिट में कई बार क्या होता है, हम कुछ ऐसी चीज़ों में मुझे लगता है कुछ हम ऐसी कॉस्ट करते हैं जिसको हम मुझे लगता है कम कर सकते हैं, बट जो कहते हैं ना जो प्राइम कॉस्ट होती है, जो रॉ मटेरियल, जो बेसिक जो चीज़ है, मुझे लगता है उसमें अगर हम एक वी पे देम ब्रेड, तो उनको इंसेंटिव होगा तो और प्रोड्यूस मोर ऑफ दैट। तो मुझे लगता है उन्हें हमें फार्मर्स को हैंडीक्राफ्ट के जो आर्टिजन्स को अच्छा पैसा देना है। भाई ये नहीं कह रही कि मैं अपना मार्जिन कम कर लूँगी या मेरी प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, हम कर सकते हैं अगर हम उसकी कॉस्ट वर्कआउट करें किसी वे में, उसमें कुछ कुछ जहाँ पे हमें लगता है जिसमें हम इकोनोमाइज कर सकते हैं, उसको करें, डेफिनेटली वी कैन। बट ये मैंने जैसे आप कह रही है, मैंने देखा है कि लोग उस प्रोडक्ट को बहुत पैसे पे बेचते हैं, बट जो एक्चुअल आर्टिजन होते हैं, मैंने कितने लोगों को वो कहते हैं हम NGO करते हैं, हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, बट मैंने देखा है कि वो लोग पे नहीं करते। और मुझे लगता है पेमेंट ऑन टाइम करना बहुत ज़रूरी है, प्रॉम्प्ट पेमेंट वो कहाँ से लाएंगे ना, अगर नीड रॉ मटेरियल फॉर दिस, तो प्रॉम्प्ट पेमेंट करना, और मैंने कभी बहुत ज़्यादा बट एक रीजनेबली अच्छा अमाउंट, तो मुझे लगता है क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और उनकी प्रोडक्टिव, उससे हमारे को भी तो फायदा होगा ना। उनको अगर उनकी प्रोडक्टिव बढ़ेगी तो हमारा प्रोडक्ट भी तो अच्छा होगा, और हमारा वो हैंडीक्राफ्ट में ज़्यादा अगर आई इन्वेस्ट give them good money, they will definitely produce good pieces for me, which I can sell at a far good price. मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम सोच रहे थे कि यहाँ के जो फार्मर्स हैं बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। बट अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारे फार्मर्स क्या उतने सेटिस्फाइड हैं कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रहे हैं? प्रोटेस्ट मुझे लगता है कि जो फार्मर्स ज़्यादातर जो कर रहे हैं, वो अगर आप देखो वो सब बड़े फार्मर। अच्छा, जो छोटे फार्मर्स हैं उनकी आवाज़ तो बहुत ही कम सुनाई देती है, क्योंकि उनको समय होता है कि वो सब प्रोटेस्ट के लिए करें। हाँ, इनके भी बहुत चैलेंजेस हैं, बट मैंने देखा है आजकल स्पेशली उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट का नेटवर्क है, लोग आते हैं उनको, मतलब उनको मार्केट के लिए आजकल हमारे उनको अच्छी मार्केट देने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। मैं नहीं कहती वो सेटिस्फाइड है, उनको भी बहुत चैलेंजेस हैं, और स्पेशली कई जगह जब स्पेशली स्पॉइलिंग और जो वेदर कंडीशन की वजह से उनका बहुत माल खराब हो जाता है। बट बाय एंड लार्ज मैंने देखा उत्तराखंड की वो लोग ज़्यादा कंप्लेन नहीं करते, ये बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, वो करते हैं, सरकार के पास जाते हैं करते, बट वो प्रोटेस्टिंग वाले मैंने देखा वो इस तरह की प्रोटेस्ट नहीं करते। और मैंने प्रोटेस्ट में देखा ज़्यादातर आप देखो जो प्रोटेस्ट करने वाले वो बड़े फार्मर होते हैं, जो जेन्युइन फार्मर होगा वो अपना सामान सब काम वाम छोड़ के उतने महीने तक प्रोटेस्ट कर ही नहीं पाएगा, उसको पूरी फसल ही नुकसान हो जाएगी, उसको उतना समय नहीं मिल पाएगा कि वो
खेत में दे सके। तो ये बात नहीं, चैलेंजेस बहुत हैं, बट मैं नहीं कह रही कि सब कुछ परफेक्ट हो गया, बट नहीं, एफर्ट्स हो रही है। मैंने देखा सरकार की तरफ से और कुछ बड़ी बड़ी एजेंसीज भी हैं, वो लोग, मुझे तो लगता है सबसे बढ़िया वे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि अगर हम उनके संग बल्क ऑर्डर्स करें। जैसे अब तुम देखो मुंशियारी में जो राजमा है वो इतनी अच्छी है, इतनी पॉपुलर है, अब लोगों को समझ में आ गया ऑल ओवर द कंट्री, तो वो लोग उनको पहले ही इन एडवांस में बुक करा देते हैं, उससे फ़र्क पड़ जाता है ना वहाँ पे। तो कि वो ये भाई दे हैव मोर मनी टू बाय सीड्स, गुड क्वालिटी सीड्स, ये भी सब तो हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है अगर हम उनसे कंटिन्यूस हम अच्छे ऑर्डर डायरेक्टली फार्मर्स से सामान लें तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा अगर हम उन्हें अप्रोच कर पाएँ। और नहीं, अगर डायरेक्टली नहीं जा सकते तो कोऑपरेटिव्स के थ्रू करो, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव हैं इतने सारे हैं, उनके थ्रू करो, देन वी एक्चुअली आर हेल्पिंग द फार्मर्स। अदरवाइज तो इतनी लंबी चौड़ी चेन है, उसमें सब अपने अपने मार्जिन ले लेते हैं। अगर हम डायरेक्टली अप्रोच करें, आई थिंक दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आप बताइए, प्रोटेस्ट करना सही है या गलत है? मुझे लगता है कि नहीं, अपनी बात तो रखनी चाहिए। मैं नहीं कहती कि जिसको प्रॉब्लम है, जो फार्मर्स को नहीं मिल रहा, जो तो करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि ये हम ऐसी प्रोटेस्ट करें जिसमें हम लोगों का रास्ता रोकें, लोगों को महीनों तक करें, तो मुझे लगता है कि उससे जो उसका बेसिकली कॉज ही खत्म हो जाता है। क्योंकि वो भाई तुम जिससे लोगों को दिक्कत होने लगी, अब देखो कई महीनों से प्रोटेस्ट चल रही है, तो जो लोग एक्चुअली जेन्युइन फार्मर हैं, वर्कर्स हैं, तो वो कैसे रिड्यूस की तो फिर इफेक्ट होगी नहीं होगी। और तुम रास्ता रोकोगे, उनका तोड़ फोड़ करोगे, तो लोगों को तो नुकसान होगा। तो मुझे लगता है सिंपैथी उनके संग नहीं रहेगी। करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, देखो जो भी जिस वे में कर सकते हैं। जो हमारे इनफैक्ट इसमें जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका रोल बहुत होता है, वो उनकी प्रॉब्लम लेके जाएँ, है ना। और मैंने नहीं देखा ऐसा, हम लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट को इतनी, ऐसी बात नहीं। अगर तुम अप्रोच करोगे राइट पर्सन को, पीपल डू हेल्प। मैंने तो पहाड़ों में देखा है, बहुत हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट बहुत हम ऐसा प्रोटेस्ट करके लोगों को, मुझे लगता है कि परेशान करना, मतलब मैं इसमें नहीं हूँ। तो आप ट्रेडिशन की बात करते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि ये चेंज हो, बढ़े या सही रहे? देखो चेंज तो होना चाहिए, एवरीथिंग। यू कैन नॉट बी स्टैग्नेंट एट वन प्लेस, यू विल नॉट ग्रो। चेंज बहुत ज़रूरी है, बट मुझे लगता है चेंज अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने रूट से जुड़े रह के भी हम चेंज कर सकते हैं। किसी को कॉपी करके, किसी और को देख के अपने अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर रखें, एंड येट मॉडर्न, एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो कोई एक आपकी ऐसी मेमोरी जो उत्तराखंड से बिल्कुल जुड़ी हुई हो और आपको बड़ा खुश होते हो गया आप उसको सोच के? हाँ, मतलब एक मेमोरी, मतलब जिसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो मैं एक गांव में गई थी, जो जहाँ पे चाय का एक कोऑपरेटिव है। वहाँ मैं एक इंसान से मिली जो कि बहुत एजुकेटेड था, वो अच्छी खासी जॉब कर सकता था, बट उसने डिसाइड किया कि नहीं, वो अपने ही आसपास के फार्मर्स को यूनाइट करेगा, एक कोऑपरेटिव बनाएगा, और उनके अपने जो मिल्क के जो प्रोडक्ट्स को उनको मार्केट करेगा, ताकि वो जो जगह है, उनकी वो एरिया जहाँ कहाँ है, वो डेवलप करे। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर किया। मैंने सोचो वो जब इतनी पढ़ लिख के अपना अच्छी खासी जॉब छोड़ के ऐसे कर सकता है, तो हम भी तो अपने वे में किसी वे में उनको हेल्प कर सकते हैं। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया। एक बड़ी सीनियर लेडी थी जो मुझे किसी एक गाँव में मिली, जो अपना छोटी छोटी, आपको पता होगा पहाड़ में बड़ियाँ बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, और कुछ हर्ब्स को ड्राई करते हैं, वो ये कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा, तो सोचो उसको लगा कि हम ऐसे ऐसे करके बनाते हैं। तो उसको लगा कि मैं कोई ये उसकी कोई इंटरव्यू लेने आई हूँ। तो कहती है मैं ये बना के दूँगी तो तुम मेरा सामान बेचोगी, मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। तो मुझे लगा देखो कि अब आज तो उसको भी इस उम्र में है कि मैं ये जो करती थी पहले घर के लिए, इसको अगर मैं बेचूंगी तो आई बी एबल टू अर्न सम मनी। तो वो अभी उसमें वो है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। वो मुझे काफ़ी इंस्पायर किया था बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपकी क्या राय है उसमें कि जैसे करके बहुत सारी आती है डेफिनेटली, बट क्यों हमें बिजनेस करना चाहिए? मुझे लगता है कि ये जो नया कॉन्सेप्ट आया स्टार्टअप्स का, मुझे लगता है आजकल के बच्चे, तो सबसे बड़ी बात है वो किसी के, उनको ये फीलिंग कि वो किसी के अंदर काम कर रहे हैं, तो सब कुछ अपना खुद करना चाहते हैं।
कि वो मतलब सारे डिसीजन वो खुद लेते हैं। क्योंकि मैंने देखा है सरकार में हो कोई डिसीजन तुम्हारा अपना इंडिपेंडेंट नहीं है, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, बट वो खुद से डिसीजन लेके और जो गवर्नमेंट एजेंसीज की और जो इस तरह के आजकल जो उनको जो हेल्प करते हैं उनसे वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत सस्टेनेबल है और बहुत अच्छा है फॉर द यंग जनरेशन। तो जैसे कि बिजनेस सब बात कर रहे हैं कि बिजनेस बहुत ग्रो हो रहा है एंड सब बिजनेस की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो व्हाट इज योर टेक? मुझे लगता है कि बिजनेस जब आज तक कभी बिजनेस कभी किया नहीं, मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है जितना रिस्क टेकिंग और चैलेंजिंग और क्रिएटिव बिजनेस ओनर्स होते हैं बाकी लोग नहीं होते, क्योंकि मैं जो सरकारी बैकग्राउंड से आई मैंने देखा है इतना रिस्क लेना, कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो उसको छोड़ के दूसरा करना, अपना टोटल बिजनेस चेंज करना। तो मुझे लगता है ये बहुत रिस्क टेकिंग और चैलेंजिंग है। रिस्क लोगे तभी तो आगे कुछ तुम यू बी एबल टू ग्रो, तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। मुझे लगता है कि बिजनेसमैन भी बहुत क्रिएटिव होते हैं क्योंकि वो नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। बाकी जैसे तो मुझे लगता है कि ये जो है जो नया स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट अपना बिजनेस करना, ये बहुत ही सस्टेनेबल और अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अगर सब उसी वे में करें, थोड़ा थोड़ा अगर अपने वे में करें, तो सोचो कि हम कितना आगे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और क्योंकि जो होता है मैंने देखा है कि जो यंगस्टर्स होते हैं कुछ साल नौकरी करते हैं और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में साथ 12-12 घंटे, मैं अपने बेटे को देखती हूँ 16-16 घंटे, तो वो इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इसलिए आप देखो 35-40 साल के आगे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, सिर्फ दूसरा जॉब कर लेते हैं। मैं इतना तक जाती हूँ, एक लड़का भी देखिए, मैं टिंक का पढ़ रही थी कि वो IIT का ग्रेजुएट, इतनी नौकरी कॉर्पोरेट वर्ल्ड करके अब वो साधु सन्यासी किस्म रहता है। क्यों? क्योंकि भाई एक लिमिट तक तुम अपनी इस लाइफ को सस्टेन कर सकते हो। बट मुझे लगता है बिजनेस जो है ज़्यादा सस्टेनेबल है ना, अपने हिसाब से आप काम कर रहे हो, अपने स्पेस में कर रहे हो, एंड यू ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग गुड आउट ऑफ इट। मुझे लगता है कि काफ़ी सस्टेनेबल है, रिस्क टेकिंग है, एडवेंचरस है एंड वेरी क्रिएटिव। यू आर एन इंस्पायरिंग स्टोरी जो हमारे सामने बैठे हो एट दिस एज ऑल्सो, आप इतना सोच रहे हो और इतना कर रहे हो, मतलब इतनी अच्छी बात है कि मे बी द यंग जनरेशन हु इज लुकिंग एट यू, मे बी बहुत सारे लोग इंस्पायर हो एंड गेट मोर बिजनेसेस इनसाइड देयर। तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत कुछ पता लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।